हाँ, श्री अधीर रंजन चौधरी जी। लग गया। Madam, the Finance Bill 2024 is intending to continue the existing rates of income tax for the financial year 2024-25 and to provide for certain relief to taxpayers and to make amendments in certain enactments. But more tax reliefs are expected given the poor economic plight of the common and vulnerable sections of our society. But the government is adamant enough of not to provide any sorts of financial relief to the common people. Madam, here day long the budget has been a discussion on. I would like to simply suggest the member of the treasury benches that you should not consume your valuable time in lambasting and abusing the Congress party, Congress ideology, etc. You should not suffer from Congress phobia. Congress remains, and Congress will be remaining. Nobody under the sun will be able to wipe out the Congress party from the soil of India. Whatever may be your strength, whatever may be your capacity, whatever may be your resources. So you should not try to befool yourself and to befool the common people of our country. There is an idea being propagated over here that we are heading towards Viksit India, Viksit Bharat. What is the definition of Viksit Bharat? It has no shape, no odor. It has no length, no breadth. It is nothing but an amorphic idea being propagated to convince the common people that you are living in a make-believe paradise. It is nothing but an amorphic idea being propagated by this dispensation. I would like to flag the attention of Honorable Minister, who is also present in this House, that on the one hand, you are talking about Atmanirbhar Bharat and apparently putting a special emphasis on MSME sector. My simple query is, you have conceived one portal, GEM portal, for putting each and every tender. See, for each tender to be put forward to the GEM portal, the applicant or aspirant has to pay 0.5% of the contracted amount. मान लीजिए आप 10 करोड़ की कोई टेंडर भरने जा रहे हैं, आपको 0.5% फीस लगेगी, मतलब 10 लाख आपको निकाल देना पड़ेगा ये जीएम पोर्टल भरने के लिए। तो एक एमएसएमई सेक्टर, वो तो करोड़पति के नहीं है, छोटे छोटे उद्योगपति के होते हैं। तो जीएम पोर्टल में अगर कोई काम मिले और उसके चलते अगर 0.5% उनको फीस देने पड़ी, तो आप बताओ वो बेचारे छोटे उद्योगपति क्या करेंगे? बैंक से लोन लेके वो टेंडर डालते हैं और उनसे आप लोग अगर 0.5% निकाल देते हैं, तो बताइए ये उनका ऊपर बुरा असर होगा या नहीं? तो मैं इस विषय पे आपको जरूर ये सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि इसको आप ध्यान से पढ़े देखें। फॉर एनेबलिंग इन सर्विस द पर्पस और गोल ऑफ प्रोमोटिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस, I would suggest that the government do away
with the current system of upfront payment of 0.5% of the contracted amount immediately by the enterprise concerned. Instead, a more viable and objective method of charging fees for the contracted amounts to the portal could be introduced by way of having a graded or slab-wise system of fees prescribed starting from a contract amount of rupees 50 crore. आप 50 करोड़ से शुरू कीजिए, टान की प्रोजेक्ट में शुरू कीजिए, लेकिन उसके नीचे जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनसे इससे उनको मुक्ति दिलाइए। ये उनके ऊपर बड़ी भारी असर होते हैं। हमारे छोटे छोटे उद्योगपति की इसके लिए बड़े परेशानियां झेलना पड़ते, इसलिए मुझे लगा कि आपको ध्यान आकर्षण करें। हम सब जानते हैं कि इस जो बजट होते हैं या फिनांस बिल होते हैं, ये मतलब इंडिकेट करते हैं कि ये लास्ट ईयर इन ऑफिस अहेड ऑफ ए जनरल इलेक्शन। In order to ensure continuity of government expenditure and essential services until a new government present full-fledged budget, as has been prescribed with the Article 112, that today we are discussing on interim budget. That name of interim budget was coined by Mr. Chetty, who was the independent India's first finance minister in the year 1947-49, 26 November 1947. He presented the budget. And since then, the practice has been continuing on. My next question is that day long we are talking about बेरोजगार, बेरोजगार, बेरोजगार। आप बताइए तो, बेरोजगार हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा अभिशाप बनते जा रहे हैं। और ये बेरोजगारों के जब रोजगार दिलाने के लिए मेहनत करने पड़ते और भर्ती होने की इम्तिहान देने पड़ते, इम्तिहान भी दिए, उनको ये कहे गए कि हां आज ना तो कल आप भर्ती हो जाओगे। ऐसा 1.5 लाख नौजवान जो हमारा फौजी में दाखिल होने के लिए सारे इम्तिहान पास कर चुके थे, अचानक उनको खबर मिली कि नहीं, आप भर्ती नहीं हो पाओगे। ये 2019 से 2022 1,60,000 कैंडिडेट्स ये आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होने के चलते इनको इंतजार करने पड़े। अचानक इनको एक खबर मिली कि रिक्रूटमेंट ड्राइव बंद हो गए हैं। द सस्पेंशन ऑफ रिक्रूटमेंट ड्राइव left thousands in limbo, notably 7,000 Air Force aspirants and 2,500 Army Medical Corps nursing assistant candidates. Despite fulfilling the criteria, this individual क्या करेगा? हाँ सर, सर इसके सरोकार है सर। Despite fulfilling the criteria, this individual faced an uncertain future due to the suspended recruitment announcement between 2019-2022. मैं बता रहा हूं, सुनिए। A significant drop in military career interest occurred post Agnipath. आपको सोचना चाहिए। With aspirants decreasing from 34 lakh to 10 lakh, this affected 24 lakh potential candidates who now face disparities in salary and recognition under the scheme. The lack of benefits like dearness allowance, military service pay, pension further diminishes the scheme's appeal. मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1.5 लाख नौजवानों को नौकरी से वंचित होने पड़े, ये अचानक अग्निपथ की ये प्रोग्राम घोषित होने के बाद। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे फौज में सर 219(5) 2195 ये कहता है सर कि मेंबर वही डिस्कस कर सकते हैं जो फाइनेंस बिल में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फाइनेंस बिल के आधार पर। अग्निवीर से, अग्निपथ से और डिफेंस में जब चर्चा होगी वो बोल लेंगे सर। फाइनेंस बिल में तो वो है नहीं। फाइनेंस बिल ने केवल ये कहा है कि 25,000 तक का जो है जो एरियर है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये किस लिए ये बात कर रहे हैं सर? तर्क है, बिल्कुल तर्क है। ये से नहीं बोल सकते। बड़े ज्ञानी है, तुम जानते हैं। बात यह कि सर कॉल एंड सेक्टर इम्पोर्ट किताब निकालिए,
और उसमें फाइनेंस बिल पे ऊपर सारे जो बयान है देखिए, बिराजो उसमें कॉल एंड scope of शब्द भी discussion- निकालो, आज डिबेट करते हैं सब पे। नहीं सर, उसमें स्कोप ऑफ डिस्कशन पे निकालो देखो आप। कॉल शब्द भी। सर उसमें स्कोप ऑफ डिस्कशन आप देखिए। नहीं, अच्छी डिबेट होनी चाहिए संसद में, कॉल शब्द भी निकालो। फाइनेंस बिल देखिए। हाँ, तो स्कोप ऑफ डिस्कशन देखा करो। सर मैं इसलिए अग्निवीर के बारे में यहाँ पैरोवी कर रहे हैं कि अग्निवीर की नाम कर हम हमारे बेरोजगार नौजवानों को अपने भविष्य के अंधेरे में ढकेल रहा हूं। मैं इसलिए अग्निवीर की बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सर ये अग्निवीर को से 4 साल कहे जाते हैं आर्मी में। 4 साल मतलब 4 साल की इनकी नौकरी, तो इनको 4 साल पुकारा जाते, ये इनके लिए एक अपमान है। सर ये अग्निवीर, ये शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, इनको मेडिकल फैसिलिटी उनकी आश्रित पत्नी बच्चे और माता पिता की नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये क्या हो रहा है सर देश के लिए? ये क्यों ऐसा किया जा रहे हैं? हमारे अग्निवीर हमारे घर की बेटा है, हमारे घर की भाई है, हमारी घर की बेरोजगार नौजवान है। अब फाइनेंस बिल पे आ जाओ। सर ये शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय पे? विद्वान लॉ मिनिस्टर साहब बोलना चाहते हैं कुछ? मैं आपको रेस्ट दे रहा हूं अभी थोड़ी देर। आज रात के 10:10 बज रहे हैं, ये इतने इररिलेवेंट बोल रहे हैं। जब से खड़े समय का मत को तो आप तो लॉ के हिसाब से बताओ, मैं कानून लॉ के हिसाब से बता बात रहा हूँ करो। कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट बोल रहे हैं। कानून की धारा बताओ। हैं? चलो मान, वो 219 बताया निशिकांत जी ने। वो तो रूल्स है। हाँ, रूल्स 219। सर आप सर तो कॉल एंड शब्द का बताओ। हाँ, कॉल एंड सेक्टर में डिटेल लिखा है। पढ़ो आराम। सर ये कानून मंत्री जो बता रहे थे सर स्कोप ऑफ द डिस्कशन ये बता रहे थे, गलत बता रहे थे। सर है ही नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, ये कानून मंत्री गैर कानूनी बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जब आपने शुरू किया टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, ये डिस्कस कर सकते हैं। ये कानून मंत्री गैर कानूनी बात कर रहे हैं। आप ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे ये हैं, अग्निवीर का कोई लिंक ही नहीं है साहब, कोई लिंक नहीं है। ये डिफेंस के साथ ताल्लुकात है, ये नए डिफेंस के साथ ताल्लुकात है। हमारे अग्निवीर को सर पहला फर्स्ट इन्होंने हमारे अग्निवीर को 21,000 रुपया तनख्वाह दिया जाते हैं। कांग्रेस की आलोचना नहीं करो, ये इन्होंने बेरोजगारों को अपने सर जुलाई में जो सेशन होगा अपने हालात को देंगे फायदा उठाते हुए खत्म करो। ये हमारे बेकार नौजवानों को शोषित किए जा रहे हैं। ये कॉल और फौज के अंदर भी भेदभाव किए जा रहे हैं। कॉल एंड शब्द। अध्यक्ष जी कॉल एंड सकदर है सर, अंग्रेजी कम आती है इसीलिए हाउस समझा देगा। ऑन ए मोशन दैट द फाइनेंस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ए मेंबर कैन डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, local grievances within the sphere of the responsibility of the government of India or monetary or financial policy of the government. इसमें वो मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल, इसीलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी तंग है मेरी, तो ये फाइनेंस बिल पर केवल फाइनेंस के बारे में चर्चा होगी। अग्निवीर से इसका क्या लेना देना है सर? यही कॉल एंड सकदर कह रहा है। समय खराब कर रहे हैं सदन का, ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है सर। अग्निवीर सर आप रूलिंग दीजिए सर, कॉल एंड सकदर भी यही कह रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट सर, जीडीपी ग्रोथ रेट 2013-14 में 6.7% थी, ओल्ड सीरीज में 7.46%। अब आए आप कॉल। 2022-23 में ये आ गया 7.2% में। सर डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2013 में थे 67.71%, आप आ गए 81%। साइज ऑफ टोटल नेशनल डेट 2013-14 में 58.6 लाख करोड़, अब आ गया 168.72 लाख करोड़, बढ़ते जा रहे हैं सर। फिस्कल डेफिसिट 13-14 में थे 4.5%, अब आ गए 5.8% ऑफ जीडीपी। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 13-14 में 5th जगह पे थे, आज आ गई है 16th जगह पे। सर मैं इसलिए कह रहे थे कि हमारे जब
चर्चा क्या शुरू की। फाइनेंस मिनिस्टर इसका खंडन करना चाहते हैं आप? हाँ बात चलो ठीक। sir, the total FDI inflow declined to 7.8% in the second quarter of 2023. Up to September 2023-4, FDI inflow in India stood at $33 billion. Over 90% of investment have been directed towards non-manufacturing sectors, despite the Make in India initiative. Between 2014 and 2021, 2783 foreign funds left or closed in India. These are the dismal scenario insofar as our economic situation is concerned. You don't try to inject a make-believe world in the mind of the common people. The situation narrates a different kettle of fish. India has 135 infrastructure projects that are delayed by 5 years or more. The road, transport and highway sector has the highest number of delayed projects at 262, followed by the Indian Railways with 115 projects. As of July 2023, the cost escalation of the 809 delayed projects amounted to over 4.65 lakh crore. 4.65 lakh crore cost escalation. It is a failure of this government. Sir, insofar as railway is concerned, Comptroller and Auditor General of India reported in December 2022 a grim outlook for the railways, attributing 69% of railway accidents between 2018 and 2021 to derailments. The Indian Railways Performance Highlight Report for 2023 highlighted that the railways did not commission any new lines with its safety system coverage in 1 year until October 2023, falling short of the target to build 637 kilometers by October 31, 2023. CNAG report की बात करते हैं. भाषण है आपका? हाँ? अभी तो और भी भाषण है. क्या छोटा सा कर दे. हाँ सर, कहिए. अधीर बाबू, कहिए. ये विदाई भाषण है, अभी छोड़ दो ना, हो गया अभी सब. बस हो गया. बस आज 2-4 बात. आप कह दीजिए सर, जब बोलेगे खत्म कर दीजिए. मुझे कोई एतराज नहीं है सर. सर ऐसा कोई बात नहीं है सर. सर मैं भाई दोबारा 356 कहता है, 356 में तो 356 कहता है सर, यदि दूसरे मेंबर ने वही बात कह दी है तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं. तो आज दिन भर जो है उसी पर चर्चा होती रही है सर, बजट पर. तो इसीलिए 356 में इनको रोका जाए सर. सर इसलिए मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, जिस बात कहे जा रहे हैं सुबह से शाम तक, हर जगह ये सरकार नाकामी साबित होते जा रहे हैं. सर ये सब मैं नहीं कहते, ये CNAG रिपोर्ट बताते हैं, ये हमारे स्टैंडिंग कमेटी बताते हैं. सर ये सिविल एविएशन के बारे में बहुत सारे बात ये कही जाते हैं. Out of the 1154 routes awarded under the scheme, from phase 1 to phase 4, airlines have initiated flights on only 475 routes. According to CNAG report, सर मैं तथ्य के आधार पर बात करते हैं, मुश्किल इसमें है. According to the CNAG report, up to the Udan 3 phase, 52% or 403 out of 774 of the awarded routes could not commence operation. Flight delays persist as a prevalent issue in the country, affecting air travel reliability. Consistent delays in flights not only disrupt schedule but cause inconvenience for passengers nationwide. ऐसे PSC के चेयरमैन को CAG की बात नहीं बोलना चाहिए ना? नहीं बोलना चाहिए सर. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर. नहीं सर, ये पारित हो गए. नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ऑफ इंटरेस्ट. ये पब्लिक डोमेन में आ गए, इसलिए कहता हूं सर, पब्लिक डोमेन में आ गए सर, मैं जानता हूं सर. सर मैं और एक बात कहना चाहता हूं, छोटा छोटी मुद्दा है मेरा.
ये स्टार्टअप इशू के ऊपर भाई और एक बात कहना चाहते हैं। द एंजल टैक्स, आज टैक्स की चर्चा हो रहा है ना, इसलिए कह रहा हूं। द एंजल टैक्स changes made in the budget 2023-24 led to taxation of investments made in unlisted companies where the value of shares is higher than a fair market value. The angel tax issue for startup was worsened by inclusion of non-resident shareholders and several non-compliance notices. The government has failed to clarify and help case the burden on startups in the current budget. स्टार्टअप की बात करते हैं, इसलिए मैं स्टार्टअप की मुद्दा उठाया। सर, ये जनधन की बात करते हैं, कह दिए कि बहुत सारे लोग कह दिया, मैं बोलना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन सर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डैशबोर्ड और स्वनिधि योजना के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डैशबोर्ड देयर आर ओवर 1 crore eligible applicants, but only about 83 lakh loans in total have been sanctioned, while only around 79 lakhs have been disbursed. Reportedly, many sanctioned beneficiaries did not receive funds, while banks recorded loan disbursement on paper. सर, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन, लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, लेकिन हमारे जूट प्रोड्यूसर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिलता, क्योंकि सर प्रोक्यूरमेंट नहीं किया जाता। जूट को प्रोक्यूरमेंट बढ़ाना चाहिए और साथ साथ जूट की डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हमारे देश की प्रधानमंत्री कहते हैं प्लास्टिक को वर्जन करना चाहिए। अगर प्लास्टिक को बैन करना चाहिए तो उसके बदले में जूट को क्यों ना प्रमोट करते हैं। ये जूट एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। ये जूट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होने के नाते इसको गोल्डन फाइबर कहा जाते हैं। ये गोल्डन फाइबर को क्यों नहीं प्रमोट किया जाते हैं, ये मेरा मांग है सरकार से। मेरा और एक मांग है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, एक तरफ कटाव एक तरफ बाढ़, ये दोनों की चपेट में फंसे रहते हैं। तो कटाव की चलते हमारा डिस्ट्रिक्ट की सारे जियोग्राफी बदल जाते हैं, हजारों की तादाद में घर बार उजाड़ जाते हैं, जमीन चले जाते हैं नदी की गर्भ में। तो इसके बचाने के लिए सर कटाव से मुकाबला करने के लिए आपको राशि मुहैया कराना चाहिए। राज्य सरकार से प्रस्ताव, ठीक है, राज्य सरकार से प्रस्ताव कम से कम आप जाओ, आप जाके देखो, राज्य सरकार को ऊपर आप दबाव डालो, कुछ ना कुछ करो। ये राज्य सरकार की मसला है, ये बहाना बनाते हुए खुद को जिम्मेवारी से हटाना भी सही नहीं है। सर ये पल्ला झाड़ने की जो सिलसिला चलते आ रहे हैं, इसके लिए मैं जैसा कई डिस्ट्रिक्टों की हालत बदतर होते जा रहे हैं। जब सुबह की सरकार को कहते हैं तो कहते हैं कि केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, केंद्र को कहते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सूबे को जिम्मेवार है। तो ये पल्ला झाड़ते हुए हमारे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद होते जा रहे हैं। तो इसीलिए सर मैं ये दोनों मुद्दा रखना चाहते हैं। और जिस मुद्दे पे हम शुरू किया था अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जब शहीद होते हैं तो हमारे दुख होते हैं। शान हो तुम वतन की, सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदिया को है सम्हारा। ये हमारा अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनके लिए ये हम सदन के अंदर उनकी तरफ से ये बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता है। धन्यवाद सर। माननीय अधीर रंजन जी, आपने इतना वक्तव्य दिया, लेकिन आपके यहाँ आपके दल का कोई सदस्य नहीं है, कोई दल का, आपका दल का कोई सदस्य नहीं है। अब आप वित्त मंत्री जी का पूरा भाषण सुन के जाना। सदस्यों ने वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लिया। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन का ध्यान खींचा है। मैं सदन